Hello dear students, welcome back to my channel and welcome to my English class too. Hope you're doing wonderful. So let's maintain the same pace of studying and learning which we are doing for several days, and in the same series of continuation I'm here with the same topic, that is tense. But today we have to go through present indefinite tense. Until now we have discussed three tenses of present tense which were the part of present tense, and today we are going to go through present perfect continuous tense. So let's have a glance first of all in the form of the verb that is given on the top. Okay, after the topic you will get form of the verb. So the basic thing that we have to go through is the form of the verb. Okay, earlier in the starting of the class I told you that the tense is all about the verb form. So here also we are going to discuss about the verb form, that which form of verb we have to use with the identification of present perfect continuous tense. So let's embark on. So guys, here we can get that verb form is has or have been plus V5. Okay, so firstly if we have to understand this, so firstly we will get the identification, and after that we will differentiate between present continuous tense and present perfect continuous tense. Okay, so let's start. Yeah, identification or uses. In the first point it is given that in such type of sentences the words like रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं, रहे हो came at the end of Hindi sentence and the timing of verb to be continued is given. Okay, so in such sort of sentences coordination of work is given. Okay, means while speaking, at the time of speaking that work is going on. आपके बोलते टाइम वो क्या हो रहा है, काम कंटिन्यू है, वो काम हो रहा है जब आप बोल रहे हो. ठीक है, एंड द टाइमिंग ऑफ वर्क टू बी कंटिन्यूड इज गिवन. ठीक है, काम की कंटिन्यूटी की टाइमिंग भी दी गई होती है कि आपका काम कब स्टार्ट हुआ था. दैट इज द पॉइंट. Okay, in the second point you can see that the present perfect continuous tense expresses an action that began in the past and has gone on till the time of speaking. ठीक है, यहाँ पे हम एक टाइम लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइम लाइन जो है आपकी, जिसमें क्या दिया हुआ है, टाइम लाइन रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. इसमें बेसिकली क्या होता है आपका. ओके, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे प्रेजेंट continuous tense और प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense में. ओके, सो इन प्रेजेंट continuous tense what happens and in present perfect continuous tense what happens. Okay, in both the sentences you can find the Hindi meaning of both the sentences that will be similarly almost similar. Okay, like if I have to say that हम खाना बना रहे हैं, और सेकेंड वन इज हम 4 बजे से खाना बना रहे हैं या फिर हम 1 बजे से खाना बना रहे हैं, लाइक दिस. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. देयर इज़ नो डिफरेंस, बट वन डिफरेंस इज देयर. यू कैन फाइंड वन डिफरेंस, दैट इज अ टाइम बार इज गिवन ओवर देयर. ओके, यू कैन फाइंड टाइम इन द सेकेंड वन सेंटेंस, दैट इज हम 4 बजे से खाना बना रहे हैं. ठीक है, तो जो पहला वाला सेंटेंस हमारा हम खाना बना रहे हैं, और दूसरा वाला सेंटेंस क्या है हमारा, हम 4 बजे से खाना बना रहे हैं. ठीक है, तो इन द फर्स्ट वन सेंटेंस यू वॉन्ट गेट द टाइमिंग. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में आपकी टाइमिंग नहीं दी हुई है, बट सेकेंड वन सेंटेंस जो है आपका उसमें टाइमिंग दी हुई है. ठीक है, कि पास्ट में आपका कोई काम स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी वो काम हो रहा है और वो फ्यूचर में भी होता रहेगा. दैट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. और इसमें टाइमिंग दिया होता है जब आपका काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो. ठीक है, लाइक अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा घर 2012 से बन रहा है, या मेरा घर 2018 से बन रहा है. ठीक है, अब काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में हमें कैसे पता चला, बिकॉज टाइम इज गिवन 2018 से बन रहा है. ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे कि मेरा घर 2018 से बन रहा है. दैट माई बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, या सॉरी, माई बिल्डिंग हैज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड सिंस 2016, like this. Actually it was in passive voice. ठीक है, I think I should take second one option या second one example. like अगर हम बोलें कि हम 2019 से इस घर में रह रहे हैं. ठीक है, that is the simplest one. so हम कैसे बोलेंगे, how will we say that I have been living in this house since 2019. ठीक है, 2019 से मैंने रहना स्टार्ट किया, पास में ये काम स्टार्ट हुआ, मेरे रहने का काम 2019 में स्टार्ट हुआ और अभी भी हम रह रहे हैं और फ्यूचर में रहते रहेंगे. दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. क्लियर. आप टाइम लाइन में देखोगे आप, इफ़ यू चेक आउट दिस टाइम लाइन, सो वन लाइन इज गिवन, in mid of that line you can find 2 stars, and between two stars you can find a broad line. ठीक है, वन इज स्केची लाइन.
their texture is given. Okay, so in the first star you can get the time which is given 4 PM, and the second star 6 PM is given, means after 2 hours 4 PM, और 2 घंटे बाद क्या होंगे 6 बजेंगे. ठीक है, तो आपका जो 4 PM है वो पास्ट की टाइमिंग है, दैट इज द टाइमिंग ऑफ पास्ट, और जो 6 PM है वो आपकी क्या है, टाइम ऑफ स्पीकिंग है, जब आपने वो काम बता रहे हो कि आपने वो काम आप बोल रहे हो, आप बता रहे हो उस टाइम, दैट इज़ द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, तो 4 बजे वो काम स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, जो कि ये 6 बजा है. ठीक है, अगर हम बोले कि रश्मि हैज़ बीन प्लेइंग चेस, सो इन ब्रैकेट व्हाट इज गिवन इन द बिलो ऑफ दैट सेंटेंस दैट शी मे स्टिल बी प्लेइंग. ठीक है, वो अभी भी खेल रही होगी. अगर हम बता रहे हैं कि वो 6 बजे से चेस खेल रही है, ठीक है, मैंने बताया वो अभी भी खेल रही होगी. ऐसा नहीं है कि वो 6 बजे से अभी हम बोल रहे हैं तो अभी फिनिश, नो, शी माइट बी प्लेइंग स्टिल. ओके, now we can use this tense to express an action that has just finished or that finished only a short while ago या short time ago. ठीक है, what is the example given over here? Let's have a glance. Suchi has been talking to some friends. ठीक है, तो अगर हमें कोई ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करना हो जो कि थोड़े ही समय पहले फिनिश हुआ है, जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. सो स्टूडेंट्स यू कैन हियर गेट द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, ये 2 टेंसेस में आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी जो कि यही हैं. ठीक है, ये जो सेंटेंसेस हैं आपके, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी कह सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कह सकते हैं. नो नीड टू वरी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल दिया है उसके थ्रू हमें क्या समझना है कि कोई काम अगर शॉर्ट व्हाइल अगो हुआ है तो उसको भी हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. राइट द सेम. ओके, तो सूची हैज़ बीन टॉकिंग टू सम फ्रेंड्स, तो सूची अपने दोस्त फ्रेंड से बात करी थी, तो हम ये क्या हो रहा है, ये थोड़े ही समय पहले ख़त्म हुआ है, पर हम इसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज गिवन द वर्क विच कंटिन्यूड इन पास्ट टाइम बट नाउ इट इज़ ओवर बट इन द इफेक्ट ऑफ दैट वर्क इज स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम. ठीक है, कोई काम पास में फिनिश हुआ, ठीक है, बट उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में देखा जा सकता है. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. अगर हम एग्जाम्पल देखें इस रूल का, सो ही हैज़ बीन रनिंग टू फास्ट. अब इसकी मीनिंग क्या है कि बहुत तेज से दौड़ रहा था वो, तो अब उसके पैर में दर्द हो रहा है, सो दैट इज़ द इफेक्ट इन प्रेजेंट टाइम. ठीक है, अगर हम बताएं कि इसके पैर में क्यों दर्द हो रहा है, अगर आपने जनरली टॉकिंग में पूछा, सो ही हैज़ बीन रनिंग टू फास्ट. ठीक है, तो पास्ट में दौड़ रहा था, बट मैंने इसको कैसे बताया, क्योंकि इफेक्ट इसका प्रेजेंट में भी है, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन एग्जांपल इज गिवन दैट द चिल्ड्रन हैज़ बीन प्लेइंग ऑल डे विद सैंड. ठीक है, तो बच्चे मान लीजिए बहुत ही डर्टी हैं, वी कांट सी देम दैट डर्टी, तो इफ़ समबडी आस्क दैट व्हाई दे आर सो डर्टी, व्हाई देयर ड्रेस इज सो डर्टी, तो हम कैसे बता सकते हैं दैट द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग ऑल डे विद सैंड, कि बच्चे पूरा दिन किससे खेल रहे थे, सैंड से खेल रहे थे, दैट्स व्हाई दे आर डर्टी. ठीक है, तो पास्ट में वो खेल चुके हैं, बट द इफेक्ट, जो इफेक्ट है वो उनका क्या है, उनका डर्टी लुक है, उसको देखते हुए कैसे कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कह सकते हैं. इज दैट क्लियर? अब सिंस फॉर का यूज़ हमने शायद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, सो लेट मी क्लियर वंस अगेन. सो सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. सिंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग बतानी हो, लाइक कोई काम मंडे स्टार्ट हुआ, कोई काम जुलाई में स्टार्ट हुआ, तो ये हमारे क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है. ठीक है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि हम 6 महीने से काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कौन से महीने से स्टार्ट किया है. मैंने जुलाई से स्टार्ट किया तो हमने जुलाई लिखा. ओके, हमने ईयर बताया कि ये बिल्डिंग 1986 से बन रही है. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ईयर हम बता रहे हैं, लेकिन अगर हमें बोलना हो कि ये बिल्डिंग 10 साल से बन रही है, ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे ईयर नहीं मेंशन किया, यहाँ पे हमने ड्यूरेशन बता दिया. ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया. तो जो पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता रहा है, वहाँ पे हमें फॉर यूज़ करना है, और जो एग्जैक्ट टाइमिंग रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस राइट करना है. ठीक है, आई थिंक दिस वन इज क्लियर. In the next video, we will try to understand that what will be the structure of present perfect continuous tense. I hope you would have got it, and I tried to explain you with the best of my effort. I hope you will get it. Thank you so much for giving me your precious time. Thank you.